comes to our inverse trigonometric functions, next topic is actually one property चल रहा था अपना, क्या हो रहा था? Properties. So next we see about next properties. I think it is 7, I think. Okay. So in that, the first one is tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse y is equal to, we have two conditions for this. Tan inverse x plus tan inverse y के लिए क्या होता है? First one is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. What are the conditions are? Both x and y should be positive and x into y is less than 1. Okay. Otherwise, another one is pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Okay. Here also condition is both are positive and x and y should be greater than 1. Product should be 1 से ज़्यादा होना चाहिए. Next, second one is we have tan inverse x minus tan inverse y. Okay, here we have only one condition. We have one formula, whatever that, x minus y upon 1 plus xy. Okay, what is the condition we have? Both xy should be positive and no inequality for less than 1, greater than 1. See there. Next, same tan inverse जो है, we are applying for, we are applying for sine. So sine inverse x plus sine inverse y. Sine inverse x plus sine inverse y. Now can be taken as sine inverse of, x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square. Here it is. Suppose here plus will be there, again plus, here minus will be there, we have minus. Okay, ये जो sin A, x equal to sin A होता है इधर, sin A cos B cos A sin B relation में आप निकाल सकते हैं, वो कैसा करना है और प्रॉब्लम में देखेंगे. Okay, now second one is cos inverse x plus cos inverse y. Cos inverse x plus cos inverse y. Now can be taken as in terms of cos inverse. Here it is x into y, the plus will be there, here minus, and root over 1 minus x square into root over 1 minus y square. Now positive के लिए minus होता है और minus के लिए क्या होता है इधर plus. cos a plus b formula आइडिया है ना? वो क्या होता है? cos a cos b plus के लिए minus आता है sin a sin b. ये cos a है, ये cos b है, वो sin a है, वो sin b है. 1 minus cos square, 1 minus sin square. So what do you have? It becomes opposite. This is cos inverse x plus cos inverse y. Now that formula you see there. Okay, now today we see about some problems on this, and again some formulas will be there. We'll discuss later for that. So you see there. So generally what we have to find out here, we have to find out the principal values. You know, what is the sine inverse? Sine inverse और sine function जो है, इसका principal value क्या होता है? What is the principal value of sine? You know, minus 90 to plus 90, the closed interval. Sine का. Similarly, cos का क्या होता है? 0 to pi. Okay. Tan का क्या होता है? Open interval minus 90 to plus 90. Open interval minus 90 to plus 90. Similarly for cot, sec, cosec, different, what we have, principal values will be there. So अभी इधर क्या बोल रहा है? Find the principal value of the following. Find principal value of following. Principal value निकालना है सर. Principal वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या दिया हमें? कोसिकेंट इनवर्स 2, द फर्स्ट वन इज
चलो वन थिंग यू हैव, बाहर कोसिकेंट इनवर्स है तो अंदर भी कोसिकेंट लेना है। तो व्हाट इज द कोसिकेंट प्रिंसिपल वैल्यू? कॉट का क्या होता है? कॉट का कॉस का ओपन इंटरवल 0 to पाई, एंड सेक का क्या होता है? कॉस का इंटरवल लेता है बट मिडिल वैल्यू व्हाटएवर दैट π/2 नहीं लेता है ना, मिडिल वैल्यू π/2 नहीं लेता है। सिमिलरली कोसेक जो है साइन का प्रिंसिपल वैल्यू -90 to +90, बट द मिडिल वैल्यू जो है व्हाटएवर दैट 0 वी आर नॉट टेकिंग। ये पूरा ऑलरेडी लिए थे सर, एक्सप्लेन भी किए थे वो कैसा होता है। ओके, सो अभी इधर कोसिकेंट इनवर्स है, तो कोसिकेंट इनवर्स एक्चुअली क्या लिखना है? 2 कोसिकेंट विच वैल्यू इज 2? साइन में मालूम है साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 क्या होता है? 2 होता है। तो कोसेक 30 व्हाटएवर 30 इज π/6 कोसेक 30, एंड ये जो 30 जो आप लिख रहे हैं वो कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू उसके अंदर होना चाहिए, है ना, -92 + 90 के बीच में रहता है। ओके, देन ओनली यू हैव टू कैंसल दिस बोथ, व्हाट यू आर टेकिंग π/6, किसके लिए? π/6 लाइज बिटवीन इसका कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू -92 + 90 एक्सेप्ट 0 उसके अंदर है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। सो इन दिस वे वी आर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सी दैट और एक क्या है, आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। कौन सा टेबल? वी हैव, सपोज इफ यू नो द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मालूम है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में सेम फंक्शन का एंगल लेना है, तो π - θ मालूम है ना, अपन लिए थे ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, π + θ इन थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - θ 360 - θ, और स्पेशली ये जो साइन जो है नेगेटिव एंगल ले रहा है, टैन जो है नेगेटिव एंगल ले रहा है, कोसेक जो है नेगेटिव एंगल ले रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना तो उसको -θ लिखने का, वो ध्यान में रखो। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में होना है तो -θ लेने का। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर tan इनवर्स ऑफ -1 निकालना है मेरे को। tan इनवर्स ऑफ -1 इसका क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो पहले क्या करेंगे अपन? tan विच वैल्यू 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालेंगे, दैट इज थीटा। ओके, व्हाट इज द थीटा? tan विच वैल्यू इज 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज π/4। बट इधर tan वैल्यू मेरे को 1 नहीं होना, -1 होना है, नेगेटिव होना चाहिए। तो tan नेगेटिव किधर किधर होता है? tan इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट बोले तो 90+ में उसका वैल्यू मिलता है, बट tan का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 90+ नहीं होता है, तो आप किधर जाना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गया ना? सेकेंड एंड फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिए तो π - π/4 कितना आता है? π - π/4 3π/4 3π/4 इज नॉट बिलोंग्स टू tan प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें रहता है क्या? 343 × 45 135 रहता क्या? नहीं रहता है। तो इसीलिए अपन किधर जाने का? नो वी कम्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं ऑलरेडी सेड, कभी भी नेगेटिव एंगल्स जो है, ये जो नेगेटिव एंगल्स को जाना है तो थीटा का नेगेटिव एंगल क्या होता है? सिंपल -θ होता है। What we have in quadrant 4, what is the principal value we are taking? -θ, that is -45। क्या होता है? -45। ओके, therefore क्या लिखेंगे अपन? tan इनवर्स ऑफ, किसका वैल्यू है ये? -1 का वैल्यू किसका वैल्यू होता है? tan ऑफ -45 होता है, -45। ओके ना, tan इनवर्स tan गेट कैंसल्ड एंड वी आर गेटिंग -5/4 बी द प्रिंसिपल वैल्यू। कैसे बोल रहे हैं आप -45? इट इज बिलोंग्स टू आवर tan प्रिंसिपल वैल्यू। व्हाट इज द tan प्रिंसिपल वैल्यू? इज -92 + 90 ओपन इंटरवल उसके अंदर है ना, सो दैट्स व्हाई यू सी दैट।
तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मेन इंपॉर्टेंट है, मीन्स उसका एंगल जो है उसको देखना पड़ेगा अपने को कौन सा क्वाड्रेंट में है और अपना प्रिंसिपल वैल्यू को टैली करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जांपल cos इनवर्स ऑफ -1/2. द नेक्स्ट वन इज cos इनवर्स ऑफ -1/2. तो नेगेटिव रहने से कुछ प्रॉब्लम होता है. पॉजिटिव बोले तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं आप, सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब में प्रॉब्लम नहीं है. नेगेटिव रहने की वजह से आपको चेक करना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर. हाँ, चलो फर्स्ट क्या लेते हैं अपन, 1/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, cos विच वैल्यू इज 1/2, दैट इज 60. दैट इज 60 बोले तो कितना होता है, cos 60 π/3. cos 60 1/2 होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा हूं मैं. अभी मेरे को क्या होना है, 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का लिया मैं, अभी मेरे को नेगेटिव होना है. हाँ चलो, cos नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव हियर सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड. फिर सेकेंड में लेना है या थर्ड में लेना है. अपना प्रिंसिपल वैल्यू cos का देखो पैसे कम है, पैसे कम बोले तो क्या है इधर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा. अंडरस्टूडिंग ना. तो इन Q2 किस में ले रहे हैं अपन, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऐसा लिखने का. इन Q4, इन Q2 वी आर गेटिंग प्रिंसिपल वैल्यू. व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3. कितना हो रहा है, 2π/3 हो रहा है. तो डायरेक्ट वही प्रिंसिपल वैल्यू है. बट चलो अपन मेथड से करना है, तो इधर cos इनवर्स, हाँ क्या कर रहे हैं इसको अपन, cos इनवर्स. नेक्स्ट -1/2 को क्या लिखेंगे अपन, cos 2π/3 लिख रहा हूं मैं. मीन्स आप सेपरेट इसका कैसे भी मालूम है, 11th में एंगल कैसा निकालना है, इसका एंगल निकाल के देखो कितना आता है आपको, -1/2 आता है. ओके, तो cos इनवर्स cos will be get cancelled. what are you getting, the principal value is 2π/3. अब चेक करना है कि cos का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 to π, उसके अंदर है क्या, 0 to 180, ये कितना है 120 है, तो रहता है ऑटोमेटिकली. therefore it is our principal value. so this is the method for finding the principal values. see there. so पहले पॉजिटिव लेने का, फिर बाद में क्या करना है, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो साइन के लिए, नेगेटिव के लिए इधर आने का, साइन और टैन और कोसेक किधर आना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का. जो -92 + 90 रिलेटेड है, जो 0 to π रिलेटेड है, वो नेगेटिव के लिए किस पे जाने का, सेकंड पे जाने का. बस उतना है, वो यू हैव टू रिमेंबर. चलो नेक्स्ट, tan inverse √3 minus secant inverse -2. Find the value. Find tan inverse √3 minus sec inverse -2. इसका वैल्यू निकालना है. ओके, तो क्या बोला था मैं, जो 0 to π रिलेटेड है, 0 to π प्रिंसिपल वैल्यू रिलेटेड है, वो किस पे जाने का, उसके लिए सेकंड पे जाने का. जो नेगेटिव -92 + 90 जो रिलेटेड है नेगेटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं. अभी देखो ना, ये √3 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. tan विच वैल्यू फर्स्ट √3 होता है, 60 π/3. tan 60 √3, tan 60 क्या होता है, √3 होता है. हाँ इधर आ जाओ, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने वाला है. तो डायरेक्ट लिखने का अभी तक प्रैक्टिस हो गया. आपको सेकेंड इनवर्स किस में लिखना है, सेक में लिखना है. व्हाट इज आंसर, आंसर कैसा लिखते हैं, नाउ सी हियर. आपको पता है कि सेक नेगेटिव लेना है. सेक नेगेटिव, सेक का क्या है, 0 to π. मैं क्या बोल रहा था, सेक यस नेगेटिव, सेक का नेगेटिव लिखना है तो किस में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट पे जाने का. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस. डायरेक्ट स्टेप इससे पहले निकाल लेते हैं ना, वही है, उससे करो आप मेथड. बट अपन अभी डायरेक्ट करने का, प्रैक्टिस करने का. सो पाई माइनस कहीं को इसमें मिलता है आपको. इसमें क्या क्या मिलता है वो इधर लिख लो सर, होना तो. इसमें कॉस और सेक और एक कौन सा है, कॉट. कॉस कॉट सेक. नेगेटिव में आए तो, नेगेटिव में आए तो ये क्वाड्रेंट में लिखने का. और इधर साइन, ओके, नेक्स्ट टैन, नेक्स्ट कोसेक. ये किस में लिखना है, नेगेटिव में आए तो, नेगेटिव में माइनस थीटा लिखने का, माइनस थीटा में लिखने का. हाँ अभी ये सेकंड नेगेटिव में आ रहा है तो पाई माइनस. किसका एंगल लिखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड विच वैल्यू 2 होता है. ओके, कॉस विच वैल्यू 1/2, cos 60 1/2 होता है सर.
तो सेकेंड 60 क्या होता है, रेसिप्रोकल 2 होता है। 60 बोले तो π/3, π/3 इज 60। मतलब सुने ना, पहले सेकेंड टू 2 पॉजिटिव क्वाड्रेंट एंगल कितना है, π/3। अपने को किधर होना है, नेगेटिव होना है। नेगेटिव किधर मिलेगा, सेकेंड का नेगेटिव किधर मिलेगा, π-θ में मिलेगा। बस अभी क्या हो रहा है, tan इनवर्स tan गेट कैंसल्ड π/3 माइनस sec इनवर्स sec गेट कैंसल्ड π-π/3। लिख सकते ना वैसा, अब होना तो कैंसिल भी कर सकते हैं इधर, π/3 माइनस पाई माइनस इंटू माइनस प्लस π/3। कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज एलसीएम, 3 एलसीएम। तो इधर ऑलरेडी सेम पाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 पाई, इधर 3 3 गेट कैंसल्ड पाई। सो 2 पाई माइनस 3 पाई, दैट इज माइनस π/3। ओके, दिस इज द वे वी आर फाइंडिंग द एंगल। नेक्स्ट, सो डबल 2 वैल्यूज दे रहा है, अभी तक सिंगल निकाले था ना इससे पहले, अभी 2 वैल्यूज। तो आप उसको पूरा निकालते रखेंगे, टाइम लगता है आपको डायरेक्ट लिखने का। सो डायरेक्ट लिखना प्रैक्टिस करो, चलो ले रहो। अभी कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2, कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2 प्लस क्या ले रहे हैं अपन, कॉट इनवर्स √3। चलो एक ही लिखना है, पॉजिटिव रहे तो कुछ फॉलो नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखने का। नेगेटिव रहे तो क्या करना है, कॉस कॉट सेक, ये तीनों के लिए पाई माइनस में लिखने का फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू, और साइन टैन कोसेक के लिए माइनस थीटा लिखने का, वो ध्यान में रखो। चलो इधर कोसिकेंट इनवर्स, इधर कोसेक का वैल्यू लिखना है अपने को, फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कोसिकेंट विच वैल्यू √2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, √2 1/√2 साइन 45 1/√2 होता है। तो कोसेक 45 क्या होता है, √2 होता है, बट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अपने को कौन सा होना है, नेगेटिव होना है। कौन सा फंक्शन, कोसेक। कोसेक नेगेटिव बोले तो किधर जाने का आपको, नीचे इधर, ओके ना। कोसेक नेगेटिव के लिए व्हाट इज द एंगल वी हैव, माइनस थीटा। थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, तो क्या लिखना है, माइनस थीटा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल π/4। हाँ इधर कॉट इनवर्स, ये तो पॉजिटिव है सर, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली कॉट विच वैल्यू √3, कॉट का कौन सा वैल्यू √3 होता है, दैट इज 30, कॉट 30 √3 होता है, π/6। कैसा, कॉट 30 cos 30 ऊपर है ना, √3/2 अपॉन साइन 30 1/2, √3 आता है, देखो एक बार। हाँ चलो, कोसिकेंट इनवर्स कोसेक गेट कैंसल्ड माइनस π/4, कॉट इनवर्स कॉट गेट कैंसल्ड π/6। ओके, एलसीएम कितना होता है, 4 6 का 12 होता है, मालूम है ना कैसा। नाउ सी हियर वी आर टेकिंग लाइक दिस, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 2s are 3 2 6 6 2 12। ओके, 12 बी द एलसीएम। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 3s are जाता है 3 इंटू माइनस पाई, इधर 6 2 टाइम जाता है 2 पाई, माइनस 3 प्लस 2 माइनस π/12 विद द रिजल्ट। खाली इधर ये कैसा लिखना है वो देखो एक बार, सिंपल मेथड दिया मैं आपको। कोसेक नेगेटिव है, माइनस थीटा में लिखो, और कॉट और क्या है, साइन टैन कोसेक नेगेटिव है तो माइनस थीटा में लिखने का, और रिमेनिंग π-θ में लिखने का। साइन इनवर्स माइनस 1/√2, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2। इसका वैल्यू निकालना है आपको, मीन्स वन वी आर फाइंडिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज। हाँ इधर आ जाओ, साइन,
आपको पता है साइन विच नेगेटिव दिया ना इधर, साइन पॉजिटिव बोले तो कितना लेते हैं, साइन 1/√2 45, साइन 45 1/√2 होता है पॉजिटिव के लिए, बट नेगेटिव के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, नेगेटिव थीटा -45 हो गया ना सिंपल, -3 इंटू साइन इनवर्स, साइन विच वैल्यू √3/2, साइन 60, so sin 60 pi/3, this both we are getting cancelled. Oh, what is the remaining, -pi/4 -3 into pi/3. Now here 3 get cancelled, so what is the LCM we are getting here, 4 be the LCM, so minus pi minus 4 into pi, that is minus 5 pi/4, 4 LCM लेने के बाद, this is your option, check out. Or next, so it comes to what we have, sin inverse 3/5, sin inverse 3/5, ऊपर क्या दिया है, show that या prove that, sin inverse 3/5 plus cos inverse 12/13, cos inverse 12/13 is equal to what we have to show here, sin inverse 56/65. चलो अभी तक जो वैल्यू ले रहा था वो नोन वैल्यूज, वेल नोन वैल्यूज बोले तो इधर 1/√2 √3/2 है ना, 2, वो पूरा वैल्यूज, उसका एंगल्स मालूम है ना अपने को, बट 3/5 यू डोंट हैव एनी एंगल, वी डोंट नो, अभी तो मालूम नहीं अपने को, तो इधर भी 12/13 का भी मालूम नहीं, उधर 56/65 कौन सा एंगल का वैल्यू होता है वो पता नहीं, तो अननोन वैल्यूज है वो, तो अननोन एंगल लेना पड़ेगा। मेथड कैसा करते देखो एक बार, तो कोई भी अननोन एंगल दिए तो उसको क्या करो, अननोन वैल्यू दिए तो उसका एंगल भी अननोन ले लो, कुछ ये बोल के ले रहा हूँ मैं, हाँ, देन साइन इनवर्स यू टेक दैट साइड, इट बिकम द व्हाट, साइन ये होता है दैट इज 3/5। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन LHS में, LHS लेते ना ये दो फंक्शन लेके उधर RHS दिखाते हैं अपन, हाँ, cos inverse 12/13, so this angle what you are taking B, तो cos B is equal to how much you are getting, 12/13, ओके, एक्चुअली इसको क्या लिए थे आप लोग, ये बोल के लिए थे, इसको क्या लिए थे आप लोग, B बोल के लिए थे, तो आपको क्या निकालना है, साइन इनवर्स, ये दिखाना है आपको, क्या दिखाना है, साइन इनवर्स 56/65, ये प्रूफ करने का है। सपोज साइन इनवर्स इधर आ गया तो क्या होता है सर, ये साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 56/65, ये भी प्रूफ कर सकते हैं ना अपन, ये प्रूफ करें तो क्या होता है, साइन उधर जाता है, फिर A प्लस B इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वो आ जाता है अपने को। सो व्हाट अबाउट साइन ऑफ A प्लस B, फॉर्मूला यू नो, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन A cos B, फिर cos A है क्या, इधर नहीं है, और इधर साइन B वो भी नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, साइन के साथ cos B निकालेंगे, इधर साइन ये है ना तो cos ये भी निकालेंगे। आपको पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी गिवन, यू टेक ए ट्रायंगल देयर, एक ट्रायंगल लेने का, और उसका साइन का प्रॉपर्टी क्या है अपना, एक्चुअली साइन का फॉर्मूला वी हैव अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ये अपोजिट 3 हाइपोटेनस 5, ऑटोमेटिकली एडजेसेंट क्या होता है, 4 होता है। सिमिलरली cos B जो है, B एंगल का ट्रायंगल है ये, cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और इधर ये क्या होता है, 5 होता है, 169 माइनस 144 25 इज बिकम द 5। अभी इधर साइन ये का वैल्यू है तो क्या लेने का, उसके साथ में cos ये का वैल्यू लेने का, cos ये क्या होता है, cos का 4/5, 4 क्या है, एडजेसेंट अपॉन 5, cos ये,
सिमिलरली इधर cos b जो है, सो यहां से sin b लेने का, sin बोले तो क्या है, अपोजिट 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, इधर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। हाँ चलो अभी आपने LHS, इसको क्या लिए थे आप लोग, ये लिए थे। नेक्स्ट इसको क्या लिए थे आप, b लिए थे। इसको क्या अप्लाई करने को देखे थे अपन, साइन अप्लाई करना है। कभी देखो एक बार, इधर साइन इनवर्स दिया तो साइन अप्लाई करो, उधर tan इनवर्स दिया तो tan अप्लाई करो। ओके उधर RHS जो ऑप्शन होना है उसको देख के अप्लाई करने का। चलो साइन अप्लाई कर रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव, साइन A cos B प्लस cos A sin B, है ना। तो व्हाट अबाउट साइन A इज 3/5, cos B is 12/13, cos A is 4/5, sin B is 5/13. So anyhow नीचे LCM डायरेक्ट एक ही लेंगे, डोंट कैंसल। 65 65 आ रहा ना, इधर भी 65, इधर 65, इधर 36, उधर 20, दैट इज टोटल 56। ये किसका है, ये साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू, बट अपने को क्या निकालना है, ये प्लस B फाइंड आउट करना है। तो साइन यू टेक दैट साइड, इट बिकम्स साइन इनवर्स 56/65। पता है क्या क्या हो गया, A प्लस B इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो फाइनल ऑप्शन इधर लिख सकते हैं आप। व्हाट अबाउट A, ये बोले तो क्या लिए थे सर आप, साइन इनवर्स 3/5, A इक्वल टू ओके, प्लस B बोले तो क्या लिए थे, cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू, रिजल्ट कितना आया था आपको, साइन इनवर्स 56/65। See there. So this is the method we are finding for unknown values. So show that, next one is cos inverse 3/5 plus cos inverse 4/5 is equal to pi/2। ये प्रूफ करना है अपने को। ओके तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर LHS, what is the LHS is, we are taking cos inverse 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू दिखाना है अपने को। इसमें भी अननोन वैल्यू है, तो क्या लेते हैं आप इसको, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या लेंगे, एंगल A बोल के लेंगे। ओके नेक्स्ट, तो cos A इज इक्वल टू, cos उधर गए तो कितना हो रहा है, 3/5 हो रहा है। ओके चलो ट्राइंगल लेंगे अपन, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एंगल को, कहीं को देखो एक बार। cos का क्या होता है सर, अपन फॉर्मूला एडजेसेंट 3 हाइपोटेनस 5, व्हाट इज अपोजिट 4 होता है। तो यहां से क्या निकाल रहे हैं आप लोग, साइन A निकाल रहे हैं। व्हाट अबाउट साइन A इज इक्वल टू कितना होता है, अपोजिट 4/5 होता है, साइन A निकाले तो यहां से ये निकालो, A इज इक्वल टू साइन उधर गए तो साइन इनवर्स 4/5 होता है। बोले तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना, उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, किसमें, साइन इनवर्स में। ओके कहीं किसके लिए आपको आइडिया आता है, देखिए एक बार, इसको क्या लिए थे, cos इनवर्स 3/5 को ये बोल के लिए थे। सेम ये इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन में साइन इनवर्स 4/5 आ रहा है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइड में कितना है, cos इनवर्स 4/5। इट इज लुकिंग लाइक वन ऑफ द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, इसलिए उसमें कन्वर्ट किया मैं। फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, प्रॉपर्टी है अपना, व्हाट इज दैट, यू आर गेटिंग रिजल्ट इज pi/2। साइन इनवर्स इधर जो भी वैल्यू है, सेम वैल्यू इधर भी होना चाहिए, तब उसका सम वैल्यू कितना होता है, pi/2। तो इधर 4/5 साइन में, cos में भी सेम 4/5, तो व्हाट इज द रिजल्ट, यू आर गेटिंग pi/2। नाउ दिस इज योर RHS, चेक आउट।